Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I hope everyone is doing good. I am Sir Sardar. नाम मेरा थोड़ा लंबा है Sardar, and then there's also Ali, and then there's also Abbas, and then there's also Qazalbash. So you guys can call me Sir Ali Abbas, or like whatever you guys will call me. I don't know, personality disorder है मुझे भी, बड़े नामों से लोग मुझे जानते हैं, सही है. So Sardar Ali Abbas Qazalbash. अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ for the new students. I myself, I was an A level student not very long ago. O levels में I had 12 A stars, and then in my A levels I had 4 A stars. जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये कहानी पता है, सही है. तो then I became a physics teacher and I was like, let's go into teaching, and to be honest, I'm pretty much enjoying teaching अभी तक तो. खैर, हमारे साथ, before I start into the teaching wala stuff and all of that stuff, guys, so I also have an academic PA. All the students who will be joining us, they will be assisted by one more person. That is Laiba Farouk over here. So hi Laiba. Hello everyone, Assalamu alaikum everyone. How are you? सब ठीक Yeah, ठाक. I'm your See their academic messages. PA. Yep. अच्छा एक सेकंड मैं आपको पहले कर लेता हूँ, then you can start. So Laiba is my academic PA. I have a list of PAs that I'm gonna be telling you, PAs like a personal assistant or a TA teacher assistant, like, okay. So yep, Laiba, introduce yourself. Yeah, I am the academic PA. I will be checking your tests and making your worksheets. And basically, I scored A star A in A level, O level. And as of course, Sir Ali Abbas, he is an amazing teacher. Yep. So she was my student back 2 years back, and in her O levels and A levels as well. So inshallah Tala, you will be assisted by me. I'm gonna be teaching. She's just gonna do the small jobs. That is it, Laiba. Thank you for joining us. Thank Okay, you. Allah Hafiz everyone. Allah You guys Hafiz. can continue. Yep. Don't be scared of him. Allah Hafiz. So Laiba Farouk, guys, it's our academic PA. Academic PA से मेरे पास मुराद है कि she will be helping you guys with that stuff. Then we have Madam Noor. मैं आपको थोड़ा पढ़ाने से पहले थोड़ी चीज़ें बता दूं कि आप लोग आसानी हो. Madam Noor handles all my fee plus registration. So if anyone is registering or whatever that stuff, and she also handles my recordings. So you should know कि who you need to contact. जैसे अगर आपको let's suppose एक वो recording चाहिए तो you need to contact Madam Noor. अगर आपने अपने किसी टेस्ट का पूछना है तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट मैडम लाइबा, सही है. तो दैट इज हाउ इट रियली वर्क्स, ओके. उसके बाद देयर आर आल्सो टू मोर पीएस, बट दोज आर बिहाइंड द स्क्रीन, सो यू वोंट रियली बी मीटिंग देम एनी टाइम सून, और शायद कभी भी. परफेक्टो. अब एज फॉर फिजिक्स गाइस, फिजिक्स ओ लेवल एंड आईजीसीसी, किस किस को ये मुश्किल लगती है सच बताएं, और किस किस को ये बहुत आसान लगती है. मुश्किल वाले रेज योर हैंड, मतलब गाइस कैन कांट रेज योर हैंड, बट यू कैन चैट इन द चैट बॉक्स. सही है, चैट बॉक्स वाले बताएं. शायद मैं अपना कैमरा बस बंद करूं, सिर्फ मैं अपनी इतनी शक्ल दिखानी थी आप लोगों को. सही है. अब आप लोग क्लास बिल्कुल आखिरी दिन पे देखेंगे मेरी शक्ल, जब आपका कोर्स खत्म होगा. तो guys, when we study physics O level IGCSE, I know कि you guys find it very difficult, and that's a prevalent thought कि यार फिजिक्स कौन करेगा, फिजिक्स कौन पढ़ेगा, बड़ी मुश्किल चीज़ है. However, physics is not as mushkil as it seems. Why? Again, guys, physics is divided into 6 sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. तो हमारे पास सेक्शन 1 क्या होता है, जनरल. ना मेरे नज़दीक एज अ टीचर आई फाइंड जनरल फिजिक्स सबसे मुश्किल फॉर स्टूडेंट्स. फिर हमारे पास होती है थर्मल, बहुत इजी होती है. देन वी हैव लाइट एंड वेव्स. देन व्हाट वी हैव फोर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है. देन वी हैव न्यूक्लियर, एंड देन इन द एंड व्हाट वी हैव स्पेस. तो ये आपका पूरा कोर्स है. अब इस कोर्स को जब हम लोग देखते हैं ना, कोर्स मुश्किल नहीं है. कोर्स में ऐसे कुछ टॉपिक जरूर है विच पीपल फाइंड मुश्किल, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मुश्किल है, जैसे आपके पास जनरल फिजिक्स मुश्किल हो जाती है. बट ओवरऑल फिजिक्स को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो यू विल सी कि इट्स प्रीटी सिंपल. मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करें ना तो आप लोग कर सकते हैं. अब आप लोगों ने करनी कैसी है, फिजिक्स करने किस तरीके से की जाती है, मैं आपको वो समझाता हूँ. आई एम गोना टीच इन विद इन 5 मिनट्स, ओके. बट उससे पहले यू गाइस नीड टू नो कि फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं. लेट्स सपोज
कोई सीरीज बताएं जो नेटफ्लिक्स पे बहुत फेमस हो, जो आप सबने देखी हो। अर्तुगरुल तो सबने देखा है ना? आई एम प्रीटी श्योर अर्तुगरुल सबने देखा हुआ है। अर्तुगरुल। अर्तुगरुल के कितने सीजन थे? 5। 1 2 3 4 5। एंड दिस इज फिजिक्स। पहले मैं आपको अर्तुगरुल समझाता हूँ, सही है? अर्तुगरुल देखें, अगर आप लोगों ने देखना था तो आप क्या करते थे? पहले पहला सीजन देखते थे। पहले सीजन में लेट्स सपोज 80 एपिसोड्स थे, तो पूरे के पूरे 80 देखते थे ना। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ के चले गए, मतलब 10 देखे और फिर 10 मिस कर दिए, 10 स्किप कर दिए, नहीं। पूरे 80 देखेंगे तो आपको 2 की कहानी समझ आएगी ना। एंड देन फिर आपने 2 के भी देखे। 2 ऐसे सबसे फजूल सीजन था आई बिलीव। हाँ, 2 बहुत बोरिंग था, या 3 था, जिसमें वो लोग वैसे वो करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, वो वाला एक बड़ा बोरिंग प्रोसेस में था। अच्छा, उसके बाद 3 देखा, फिर 4 देखा, 5। बताने का मकसद ये है कि यू गो इन एन ऑर्डर एंड यू कवर एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक यू कैन गो थ्रू वन थिंग एंड यू कैन जस्ट मिस हाफ ऑफ इट, कि नहीं यार मैंने ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते ना। आपने जब फिजिक्स भी करनी है, अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हैं, तो यू नीड टू स्टडी ऑल ऑफ इट। एक 0 से 100% तक उसकी एक एक चीज पढ़ेंगे तो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट। वरना कोई फायदा नहीं होना। ये नहीं है कि आप इस तरीके से देखें कि यार मैंने बस जनरल फिजिक्स के 2 टॉपिक किए, आओ फिर थर्मल आज पढ़ते हैं, आज यार मूड बना है लाइट एंड न्यूक्लियर कर लेते हैं। इस तरीके से फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं होती। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, द वेरी बिल्डिंग स्टेप, दैट इज चैप्टर नंबर 1, एंड देन यू गो टू एंड चैप्टर नंबर 22 तक। मैं 22 चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ, हर टीचर अपने उससे कर सकता है। ओके, वो तो इजी स्टफ है। इज दिस क्लियर एवरीवन? रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड नहीं, मुझे चैट बॉक्स में यस बताएं। जो जो नए स्टूडेंट्स है, दे मतलब आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, इफ यू गाइस डू नॉट से यस आई वोंट बी मूविंग अहेड। So I need all of you, all the students to say yes in the chat box. So we have someone from Beacon, then we have City School, MGS. MGS जिसको मैं LGS की कॉपी कहता हूँ, कार्बन कॉपी कहता हूँ। Then we have the City School, Karachi, Beacon House, Peshawar. अच्छा, उसके बाद बाकी बच्चे किधर के? चैट बॉक्स में मुझे जल्दी जल्दी अपने स्कूल्स बताएं। I really love seeing, people from diverse backgrounds in my class. It's really fun. Nice. Karachi, Lahore, Peshawar. नाइस नाइस, बड़े बड़े अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। Used to be in Beacon House school system but now private. Good job Shahir, good decision. Pakistan International School, Anas Tareen. Pisces, right? Saudi Arabia, Pisces. सही है। Pisces के तो अनस, I have a lot of students. Which city are you from? रियाद? रियाद के तो नहीं आप कहीं से? Perfecto, perfecto. चलें guys, listen. So today we'll start with kinematics. Kinematics ये जो मोशन वाला हमारे पास टॉपिक है, मोशन स्लैश काइनेमेटिक्स। एंड टुडे यू विल रियलाइज कि आप लोगों को तो आज तक फिजिक्स आती ही नहीं थी। आप लोग तो बस ऐसे ही पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे। आप लोगों को लगता था कि इस चैप्टर में 2 चीजें हैं, वो हमें आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस। सो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, आई एम गोना टीच यू गाइस स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मुझे कोई बता सकता है स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? एनीवन दैट wants to answer, you can raise your hand and I will allow you guys to open your mic. गाइस, स्केलर वेक्टर में क्या फर्क है? कोई बताए जल्दी से, सैफ बोले। वनीजा, you can answer. Sir, can you hear me? Yep, yep. Sir, scalar only have magnitude, whereas vectors have direction plus magnitude. Yep. So it's a quantity with only magnitude. अब एक मसला ये यार कि आज तक तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है, ये चीज, दिस इज बेसिकली कि अमाउंट, एक चीज होती कितनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कोई चीज वेट की, उसका मास मेरे पास आया 5 kg। ये जो 5 है, ये उसकी अमाउंट है ना, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। सही है। फिर हमारे पास आता है, लेट्स सपोज आई एम रनिंग एट अ स्पीड ऑफ लेट्स सपोज 5 meters per second या 15 meters per second, नॉट रियली पॉसिबल बट स्टिल। तो 15 क्या होगा मेरे पास? दिस इज गोइंग टू बी माई मैग्नीट्यूड। ये 5 और जो 15 है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे मैग्नीट्यूड है, द अमाउंट। ओके, एक चीज है कितनी। फिर वेक्टर क्या होता है, कोई बताए?
गाइस सबसे ज्यादा जवाब देने वालों को मैं एक केक गिफ्ट करूंगा आज, लेयर्स का। सैफ आपका एक हो गया, बाकी औरों को चांस देंगे। गाइस रेज योर हैंड, मतलब इंटरैक्टिव क्लास रखें तो आप लोगों को मजा आएगा ज्यादा। एनीवन एल्स? The question is, Mubin, the question is, what is vector? How do we define a vector quantity? जी सैफ। नो मुबीन, गलत। जी सैफ बोले। Sir, which have magnitude and direction. जी, जिसके पास दोनों होती है। सो a quantity with magnitude, and now we also have a direction. Now what do we mean by a direction? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वैल्यू है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। अब इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, बड़ा सिंपल सा है। सबको वेलोसिटी का पता है। हम लोग अपने कोर्स में जब राइट की तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, लेट्स सपोज पॉजिटिव 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसमें तीन चीजें हैं। नाउ यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव थ्री थिंग्स। वी हैव अ पॉजिटिव, वी हैव अ 5 एंड वी हैव अ मीटर्स पर सेकेंड। मुझे कोई बता सकता है ये पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी गाइस, जितना तेज तेज करेंगे ना तो उतना मजा आएगा। मुबीन यस, हरी अप मुबीन जल्दी। गाइस ये राइट साइड, ये बेसिकली अजीब, बोले बोले। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो 5 है ये मेरे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, ये प्लस जो है, मुझे कोई बता सकते हैं 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास है करेक्ट, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड। और ये मीटर्स पर सेकंड क्या है, ये मुझे कोई बता सकता है? इसको हम लोग क्या कहते होते हैं? मीटर्स। तो दिस इज द, इसकी पहचान है यूनिट। ये इसकी पहचान है यूनिट। तो याद रखें, हमारे पास एक इतनी छोटी सी चीज भी जो लिखी होती है उसके अंदर इतनी फिजिक्स छुपी हुई है। आप लोग तो इस सरसरी तौर पे ऊपर ऊपर से लिख देते हैं, लाइक यार चलो बस सही है, हो गया, गुड सीन है। तो अच्छा एक सेकंड, क्या जस्ट रिसीव्ड मैसेज, हाँ मिल गया। हाँ, आप लोग तो कहते हैं कि गाइस बस एक छोटा सा एक चीज हमने लिख दी, बस इसको छोड़। नहीं, आपके पास एवरीथिंग दैट यू राइट इन फिजिक्स हैज समथिंग, उसकी कोई पहचान है। इट नीड्स टू हैव सेंस, वरना इट्स नॉट फिजिक्स। सही है। ओके, मूविंग अहेड। ये तो हमने कर लिया। अ वेक्टर क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब इसकी जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। अभी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ओके, तो लेट्स गो। ये तो हमारे पास बेसिक स्टफ था। ओके, नाउ लेट्स स्टडी, लेट्स एक्चुअली स्टार्ट स्टडी स्पीड। स्पीड की क्या डेफिनेशन है, कुछ जल्दी से बताए, चैट बॉक्स में लिखे। स्पीड इज डिफाइंड एज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, अब इसको भी मैं समझाऊंगा ना, यू गाइस विल रियलाइज कि आप लोगों ने आज तक ये डेफिनेशन को भी बस सरसरी सरसरी का मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा है। रेट क्या होता है? रेट का कोई मतलब बता सकता है? व्हाट इज रेट इन फिजिक्स? रेट ये नहीं है कि सर ये मुझे बताएं चिप्स का क्या रेट है, ये नहीं। फिजिक्स वाला रेट का, अलीना, आमना, ईसा, हामिद, तो पहले चार पांच नाम है। किन्स। यस मोबिन, व्हाट डू यू थिंक? Rate means something divided by time. ओके, ऑलमोस्ट करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट। थोड़ा सा बस मसला है, देखते हैं कोई और बताए। एनीवन एल्स? गर्ल्स, ये तो मुझे सारे आंसर बॉयज को दे रहे हैं। सैफ, मुबीन, आप लोगों ने आंसर्स दे दिया। अब न्यू पीपल, आई नीड न्यू पीपल। सो गाइस, रेट करेक्ट, किसी बच्चे ने सही आंसर दिए। मींस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है, पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का क्या मतलब है कि पर सेकंड डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज स्पीड। अब देखें, आप लोग लिखे ना 5 मीटर्स पर सेकंड, यही है ना आप लोगों के पास स्पीड। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये आप लोगों ने एग्जाम में लिया। अच्छा,
या आप लोगों ने पेपर में लिखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सही है। अब ये 5 मीटर्स पर सेकेंड जो मैं लिखता हूं, इसका क्या मतलब है कि हर सेकेंड मेरे पास डिस्टेंस 5 मीटर से चेंज हो रही है। तो लेट्स सपोज मेरे पास ए है, फिर मेरे पास बी है, एंड देन फिर मेरे पास सी है। ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में ए से बी में पहुंचा, तो कितनी डिस्टेंस है ए और बी में? स्पीड, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड। इट टुक 1 सेकेंड टू रीच फ्रॉम ए टू बी। तो पर सेकेंड हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 5। तो ये जो 5 मीटर्स पर सेकेंड है, दिस इज अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 मीटर। और लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, बताएं। अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर्स है तो 3 सेकेंड में कितना होगा? 15। करेक्ट, गुड जॉब गाइस। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज 15 मीटर हो गया। देखिए ये आप कर तो फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, आप सबको फॉर्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बट बताने का मकसद ये, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग। तो स्पीड क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। सही है। अच्छा इधर तक मुझे बताएं, एवरीथिंग क्लियर? आई नीड यस। वो रूल याद रखें, आधे से ज्यादा बच्चे यस नहीं कहेंगे, सो वी वोंट मूव फॉरवर्ड। सबके सब अच्छे अच्छे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी यस 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 कर लें। गुड जॉब गाइस। जितना जल्दी जल्दी यस करेंगे उतना जल्दी जल्दी हम आगे जाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग पढ़ा करेंगे। अब ये तो स्पीड थी। अच्छा अब स्पीड आप लोगों ने याद रखनी है क्या? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा कहीं मेरी राइटिंग किसी को समझ नहीं आती ना, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा आई नो मेरी सबसे प्यारी राइटिंग नहीं है, तो समझ लें स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी मतलब आप समझेंगे, वो कहते हैं अदर साइड में हमारे पास एक और चीज है। सर डोंट वी यूज वी फॉर स्पीड? वो हम लोग यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए। मैं आपको समझाता हूँ लीना, देयर इज अ डिफरेंस। मैं भी आपको सारा समझाता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेट्स सपोज मेरे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है। डिस्प्लेसमेंट इन आवर बेसिक लैंग्वेज जो हम लोग ओ लेवल की फिजिक्स में कहते हैं, वो तो ये होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्क्राइब्ड एज डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट को जैसे मैं डिस्क्राइब करता हूं, आई फाइंड इट टू बी डिस्टेंस विद अ डायरेक्शन। डिस्टेंस विद अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड की स्पेलिंग, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब इसको लिखने के क्या मकसद था? देखिए आपके पास जो डिस्टेंस को आप एक डायरेक्शन दे देते हैं, मतलब अब ए टू बी है ना, तो मैं एरो बी की तरफ लगा रहा हूं, तो हमें क्या पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फ्रॉम ए टू बी। मतलब ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव किया। अगर ये डिस्टेंस होती तो डिस्टेंस में हमें सिर्फ ये पता था, ये देखेंगे डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट बी टू ए गए तो ए टू बी गए। डू यू गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस विद अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमने बता दिए, ऑब्जेक्ट वेंट फ्रॉम ए टू बी, तो मतलब ए टू बी की तरफ मेरे पास एरो है। बट ए टू बी जब मैं डिस्टेंस में बात करूंगा, वी डू नॉट नो द डायरेक्शन। इजी राइट? चलो अब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, क्योंकि हमने इधर डायरेक्शन दे दी है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी राइट? Any quantity with a direction is a vector quantity. Now हमने ऊपर पढ़ा था स्पीड। स्पीड की एक जुड़वा बहन है, आप समझे, जिसको हम लोग कहते होते हैं वेलोसिटी। कैन somebody tell me what is the definition of velocity? एग्जाम में लिखनी है। सैफ एंड मुबीन आप लोगों ने आंसर्स दे दिए, अब आप चैट में आंसर्स दें। I'm going to give other people some chances. हाँ इस चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी जल्दी। Change in displacement per unit time. Perfect. So the velocity is described as the rate of change of displacement. Displacement. नहीं तैमूर, आप क्या इतनी लंबी मुश्किल सी बना रहे हैं? सिंपल सी चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। स्पीड हमारे पास क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि वो स्केलर था। तो अब इधर हमने वेक्टर को चेंज, हमने डेफिनेशन चेंज कर दी डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है,
अब एक चीज याद रखें, V is for velocity. Throughout your course you will use V for velocity, S for displacement. आपके कोर्स में डिस्प्लेसमेंट ही है। अच्छा, आप लोग आगे जितना भी पढ़ेंगे ना तो आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे, या डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड T is for टाइम। इधर जो मेरे पास फॉर्मूला बना वो मेरे पास था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इधर से एक मसला ये होता है, यूनिट इसका याद रखें मीटर्स पर सेकंड, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये मीटर्स और ये सेकंड। अब इधर कंफ्यूजन किधर होती है मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। इधर भी एक एस है और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम में भी एक एस है। तो ये एस मेरे पास स्पीड वाला एस है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये मेरे पास जो वी है ये एस जो है ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वाला है। ओके, तो वेलोसिटी अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब पर सेकंड कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब मुझे आप लोग एक चीज बताएंगे, मैं लिखता हूँ पॉजिटिव 10 मीटर्स पर सेकेंड। याद रखें पॉजिटिव का मतलब है टुवर्ड्स द राइट। तो मुझे पॉजिटिव 10 मीटर्स पर सेकेंड क्या बता रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? कैन समवन टेल मी? गाइस मैं आपके बार बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, आई वांट यू गाइस टू आंसर। दिस इज हाउ यू विल लर्न फिजिक्स। फिजिक्स सुन के नहीं आती। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके टीचर्स आप लोगों को क्लास में सिर्फ कहते हैं कि सुने और आपको फिजिक्स आ जाएगी, तो दैट इज नॉट ट्रू अनलेस यू गिव आंसर। गलत आंसर दें। अच्छा, आई एम वेरी इजी विद दैट। क्वेश्चन पूछते हैं, गलत आंसर देना, चैट बॉक्स है, सही है, इजी सीन है, गलत बोले कोई मसला नहीं है। मैं वो कभी बेइज्जत नहीं करता स्टूडेंट्स को। मेरे पुराने स्टूडेंट्स इधर बैठे हुए देखे, दे वांट टू से कि मेरे पास बहुत ज्यादा वो है, पेशेंस है, उल्टे पुल्टे सवाल पूछे, खैर है। हाँ, रोज शोर्स में बहुत करता हूँ क्लास में, बेइज्जत नहीं करता। तो पॉजिटिव 10 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, या मैं दिखा देता हूँ उससे बेहतर है, टूवर्ड्स द राइट मेरे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट हुई है। लेट्स सपोज फ्रॉम ए टू बी टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि क्या था, पॉजिटिव था। अगर मैं इधर नेगेटिव लिख दूं गाइस, -10 मीटर्स पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है, टूवर्ड्स द लेफ्ट मेरे पास अब डिस्प्लेसमेंट हुई है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ पे गया है। सो दिस इज व्हाट वेलोसिटी रियली रिप्रेजेंट्स। ओके, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज मतलब विद डायरेक्शन। तो मुझे बताएं इधर तक सबको सब कुछ क्लियर है? किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ लें, फिर आगे जाएंगे, फिर आपको ही मसला होगा, समझ नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में मैं सबके नाम लेता हूँ, अलीना, आमना, ईसा, अहमद, आनिया, किन्स, मारिया, मरियम, मेहदी, मुबीन, मोहम्मद, राफिया, सैफ, शहीद, तैमूर, तिशा, कीशा, वनीजा, यमुना, उमर। बीकन हाउस पेशावर। यमुना, आप लोगों के टीचर कौन है बीकन में? बीकन हाउस एफसी की टीचर कौन है फिजिक्स की? नहीं जानता खैर। तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी इज। अब इधर हम लोग आगे जाने से पहले जरा हम लोग लेट्स सपोज वी कैन गो फॉर एवरेज। एवरेज ले लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मतलब इसको लिखते कैसे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब ये जो क्रोकोडाइल माउथ है इसको हम लोग कहते होते हैं क्रोकोडाइल माउथ, मगरमच्छ का मुंह। ये जो क्रोकोडाइल माउथ अगर आपको पूरी फिजिक्स में किसी भी चीज के आज मतलब इर्द गिर्द मिलेंगे, इस चीज का मतलब है, लेट्स सपोज कोई वेरिएबल एक्स है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हम एक्स का क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। सही हो गया? तो ये जो क्रोकोडाइल माउथ है ये एवरेज रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम लोग क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का मुंह कहते हैं, क्रोकोडाइल माउथ। सही हो गया ना? तो इधर हमने जब इसको एस के इर्द गिर्द लगाया, मतलब हम लोग ले रहे हैं स्पीड की एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोगों को समझ आ रही है। मैं जा रहा हूँ ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ये है 5 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर। तो उसको 3 कर देते हैं आसानी के लिए, ये है 3 किलोमीटर।
तो दिस टाइम हम लोग रख देते 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 1 आवर, 4 hours and 1 hour. Now the question is, I want you guys to find the average speed from A to D. Find average speed from A to D. Question number 1. बताएं. Correct guys, good job. एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होगी? टोटल डिस्टेंस दैट इज 5 + 10 + 3 18, 18 किलोमीटर ओवर टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना है? 1 + 4 + 1, दैट इज 6 hours. तो 1 3, so 3 किलोमीटर्स पर आवर. इतनी गाड़ी को स्लो चलाता नहीं है वैसे, बट सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. तो ये एवरेज स्पीड में मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो गया. सर यूनिट चेंज नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं. किलोमीटर पर आवर भी सही है. याद रखिए स्पीड वेलोसिटी के 2 यूनिट्स हैं हमारे कोर्स में, 3 है एक्चुअली. सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड एंड किलोमीटर्स पर आवर. याद रखें किलोमीटर्स पर सेकेंड भी आता है, बट वो हम लोग स्पेस फिजिक्स में पढ़ेंगे जब हम लोग ऑर्बिटल स्पीड पढ़ते हैं. तो दैट इज किलोमीटर पर सेकेंड, वो है हमारे पास 30. दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ. अर्थ जो सन के इर्द गिर्द घूमती है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से घूमती है. आप लोगों को पता है कितना तेज है? तो ये 3 यूनिट्स आपके पास कोर्स में है. समझ आ गई? जहन नशी हो गई मेरी बातें, जहन नशी. ये वही 5-6 बच्चे यस बोल रहे हैं, बाकी किधर सोए हैं सारे? शादो, शहजादो एंड शहजादियां. Word. अब हम लोग पढ़ेंगे गाइस एक्सेलरेशन के बारे में. एक्सेलरेशन क्या होती है यार? जिसने एक्सेलरेशन समझा दी उसको मेरी तरफ से आज एक छोटा सा गिफ्ट क्लास के एंड में. जिसने मुझे एक्सेलरेशन समझा, थिंक ऑफ मी एज अ स्टूडेंट. रेज योर हैंड गाइस. थानिया हमाद हाशमी, ओपन योर माइक. Acceleration is change in velocity per unit time when something is moving in the same direction while constant of speed of acceleration is zero. Acceleration and deceleration. एक मिनट. आप मुझे फिजिक्स में ना समझाएं, आप मुझे जनरल लैंग्वेज में समझाएं कि हो क्या रहा है. फिजिक्स वाली तो मुझे पता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. समझाएं, बताएं नहीं. देयर इज अ डिफरेंस, ओके गाइस? बताना इज व्हाट यू आर डूइंग. आई वांट कि आप मुझे समझाएं कि होती क्या एक्सेलरेशन. बड़े सिंपल अल्फाज जब में. जब हम इन जनरल किसी भी चीज की स्पीड बढ़ा देते हैं, लाइक अगर गाड़ियों की जुबान में बात करें तो हम अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो दैट मींस वी आर एक्सेलरेटिंग द स्पीड. जब हमारी कोई भी चेंज होती है, स्पीड में होता है या वेलोसिटी में होता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सेलरेशन. एंड सिमिलरली डी एक्सेलरेशन होती है कि उसी का ऑपोजिट करते हैं. तो Perfect. Almost close. Amna, you also raise your hands. I'm going to allow you. Amna, बताएं. आपने भी हाथ खड़ा किया था. कोई और भी थी, सालेहा ने भी किया था. सालेहा Sajil, you want to give it a try? The Nexus School, Lahore. Yes, acceleration is like when you gain speed, when an object gains speed, यानी कि कोई भी अगर भाग रहा है तो एक स्पीड से वो पहले ही चल रहा है. पर इफ इट्स अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो वो किस रेट से और किस टाइम से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है. हाँ चलें, दैट इज करेक्ट ऑलमोस्ट. हाँ, आप वो थी ना जिसने वो कल कुरान की वो रेसिटेशन मुझे वो भेजी थी. यू मेड मी फील वेरी अनइस्लामिक वैसे. अच्छा, आई वाज लाइक कि गाइस कोई अच्छा सा गाना बताएं. देन शी कम्स इन विद सर कुरान सुने. आई लाइक, यू नो, लाइफ होता है ना वो, एक डीप रिग्रेट आ जाता है बंदे के दिल में. आई वाज लाइक शिट. खैर, बताने का मकसद एक्सेलरेशन का इसमें बड़े सीधे अल्फाज में समझाता हूँ, सबको समझ आ जाएगी. एक्सेलरेशन इज कि 1 सेकंड में वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, बस.
बात खत्म, इससे आगे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक्सेलरेशन इज कि 1 सेकंड में वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ओके। जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते होते हैं, जो फिजिक्स में लिखते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या मतलब, रेट का क्या मतलब था, पर सेकंड, राइट। तो पर सेकंड हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी आ रही है, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग खुद समझ जाएंगे। एक्सेलरेशन में लिखता हूँ, लेट्स सपोज पॉजिटिव 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब समझे एक्सेलरेशन, आप लोगों ने शायद आज तक एक्सेलरेशन ही नहीं समझी, एक्सेलरेशन होती कैसे है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन है +3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है, पहले सेकंड में लेट्स सपोज मेरे पास स्पीड थी 10 मीटर्स पर सेकेंड इज माई स्पीड, ओके। दूसरे सेकंड में मेरे पास कितनी स्पीड होनी चाहिए बताएं, एक्सेलरेशन इज +3, मतलब इंक्रीज होगी। तो दूसरे सेकंड में कितनी होनी चाहिए, 1 सेकंड बाद इट विल बी 13। दूसरे सेकंड बाद मतलब 2 के बाद 3 में कितनी होगी, 16। उसके बाद फोर्थ 19। उसके बाद लेकिन पकड़े गए ना, जो पहले पहले आंसर लिखते थे मैं तो उसके बाद लिखे नहीं था, जिन्होंने 22 लिखा है। वैसे 21 नहीं है, 22 है तैमूर। 19 + 3, तो देखें क्या होगा बताएं शहजादे। 9 + 3 इज 12, तो 2 इधर आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 + 1 इज 2। ये दो बच्चों ने 21 लिखा हुआ है इधर, सही है, और एक ने 23 लिखा हुआ है, वाह। खैर बताने का मकसद ये एक्सेलरेशन क्या है, कि पर सेकंड मेरे पास वेलोसिटी में क्या चेंज आ रही है। तो देखें, इट वेंट फ्रॉम 10 to 13, देन इट वेंट फ्रॉम 13 to 16, and then it went from 16 to 19. So per second there is a change in my velocity, that is acceleration. Guys, is this clear? समझ आ गई, जहन नशी हो गई एक्सेलरेशन एक्चुअली होती क्या है। एंड द सेम थिंग इज विद डिसेलरेशन, जिसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और मेरे पास पहले सेकंड में 10 मीटर्स पर सेकंड थी, तो अब क्या होगा, दूसरे सेकंड में 7 मीटर्स पर सेकंड होगी, तीसरे में क्या होगा, 7 - 3 क्या होता है, हाँ 4 होता है ना, मुझे भी भूल गया, 4 मीटर्स पर सेकंड। फिर मेरे पास 1 मीटर्स पर सेकंड। उसके बाद बताएं क्या होगा, it will start moving in the opposite direction. No, Taimur, zero नहीं होगी, उल्टी हो जाएगी, it will be -2 meters per second. So now do you guys understand what is actually happening over here? एक्सेलरेशन में हो क्या रहा है, देखें एक्सेलरेशन समझे, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो आपका वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कैसे चेंज हो रही है, समझ आ गई। जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला हमारे पास अच्छा वैसे किसी ने लिखना हो तो मुझे बता दिया करें, अच्छा। मैं तो ऑफ कोर्स तेज मूव करता हूँ, आई एम प्रीटी यूज, मेरे स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू इट। अभी आप लोग नए नए हैं तो आप लोग बता दें। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v - u/t। Now what is guys a? A is your acceleration। एक्सेलरेशन का यूनिट तो आप सब लोगों को पता ही पता है ना, इट इज मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास v है, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या सैफ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोलें। u हमारे पास इनिशियल है, एंड t इज योर टाइम। सही है गाइस। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसके बहुत क्वेश्चंस करेंगे, हम आगे जाके बहुत कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी आपसे फॉर्मूला आप लोग समझ लें, फिर आगे जाके हम लोग बात करते हैं। समझ आ गई। उसके बाद गाइस वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, ग्राफ्स। तो ग्राफ से पहले हम लोग पढ़ेंगे गाइस ग्रेडियंट्स के बारे में। ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पूरी फिजिक्स में भी आगे भी बहुत काम आएगा, और आगे जाके फिर आपकी मैथ में भी ऑफ कोर्स। सो वी हैव 8 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स। 8 ऐसे लाइंस बनाएं, ग्राफ 2 बोल,
पहले these are the 8 possible lines in your course, okay? जो हमारे पास हैं, ये 8 किस्म के ग्रेडियंट्स हैं. This is zero gradient. This is infinite gradient. This is infinite, 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 NIT. अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास increasing, ये हमारे पास decreasing. अब ये वाला देखेंगे, this is उल्टा इस तरीके से नीचे आ रहा है. इस वाले ग्राफ को हम लोग कहते होते हैं नेगेटिवली इंक्रीजिंग. सही है, नेगेटिवली इंक्रीजिंग. इसको हम लोग कहते होते हैं नेगेटिवली डिक्रीजिंग. अच्छा, अगर किसी को नहीं पता ये नेगेटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव. तो इस दोनों के एंड में आई वी वो आता है ना, टी आई वी. तो दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एंड दिस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव. अच्छा, जो पहले दो लिखे थे वैसे वो पॉजिटिव है. दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, and this is negative constant. Okay, समझ आ गई? So these are the 8 graphs that you will use throughout your physics in your O levels and then even in your A levels actually. तो इसके अलावा तो कोई है नहीं ग्राफ्स, तो यही वाले आप लोग यूज करेंगे. गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्या कट शट हो रही है आवाज तो बता दें. Not that I can do anything about that, but ये नेट है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी नेट है. सही है. परफेक्टो परफेक्टो परफेक्टो. सही है, चलें ये जरा कॉपी कर लें. आई नो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. उसके बाद थोड़ी गपशप लगाते हैं. सर एंड में डिस्प्लेसमेंट समझा दें. देखिए मोहम्मद, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होती है दैट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स. आप कोई भी दो पॉइंट्स लें, उनके बीच में सबसे छोटी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ. ये आपके शहर के मोहम्मद बताएं, विच सिटी आर यू फ्रॉम, जल्दी से. जल्दी जल्दी जल्दी. एग्जाम्पल आपको फिर सही समझ आएगा ना. चलिए सर ज्यूम की और हम पेशावर. ठीक है, बाकी कॉपी करते हैं. ये पेशावर और ये इस्लामाबाद है. अब हमारे पास इस्लामाबाद जाने के और भी तरीके हैं. नहीं, दीज आर ग्राफ्स गाइस. ये आपको मैं, ये ग्राफ्स डिस्टेंस टाइम के लिए भी हैं, वेलोसिटी टाइम के लिए भी हैं, एक्सेलरेशन टाइम के लिए भी हैं, हर चीज के लिए हैं. ये सिर्फ ग्रेडियंट्स हैं. Okay, these are all gradients. These are not specific. देखिए मैंने कोई ग्राफ का नाम नहीं दिया. ये आप ग्रेडियंट्स है आपके पूरे कोर्स, क्या पूरे फिजिक्स में, ए लेवल सब में यही को आपका ग्रेडियंट्स है. अच्छा देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि डिस्प्लेसमेंट होती क्या है. तो ये लेट्स सपोज मैंने पेशावर से इस्लामाबाद जाना है. देयर आर फ्यू अदर वेज. मैं या तो मोटरवे से जा सकता हूँ विच इज अ स्ट्रेट लाइन. मैं या तो जीटी रोड से जा सकता हूँ विच इज अ लाइन लाइक दिस. या तो मैं अहमदाबाद के थ्रू जा सकता हूँ विच इज अ दिस. ओके, अब ये तीनों की तीनों रास्तों में मैं पहुंचता हूँ इस्लामाबाद ही. बट इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी मेरी? It's going to be the one that I'm using the motorway for, right? So this is the shortest distance between Peshawar and Islamabad. So this is what displacement is, okay? So guys, ये graphs आप लोग note कर लें. इंशाल्लाह in the next class जब हम लोग लेंगे फिर मैं इनको describe करेंगे and we'll study के where are they used. उसके अलावा guys, during our classes हम लोग वर्कशीट्स क्या करेंगे. वर्कशीट्स कौन सी, मैं आपको वो दिखाता हूँ. So आपके पास जो IGCSE में है ये वाली, ये आपका पूरी कोर्स की अच्छा वर्कशीट्स है.
दिस इज अ 41 पेज। ये अभी वैसे न्यू बनेगी, ये न्यू वाली इतनी बड़ी बड़ी वर्कशीट्स हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। सो लाइक दिस इज मोशन वाला चैप्टर आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? तो हम उसमें करेंगे, ये हम चीजें पढ़ेंगे। वैसे अभी यू कांट रियली डू एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस बिकॉज़ आज पहला दिन था, बट ये देखें हर एमसीक्यू के, ये हम सारे एमसीक्यूज करेंगे। सारे से मुराद ये कि वी विल डू almost 50% in course and the 50% is your homework, not as in homework which I will check, but देखिए guys, अब आप लोग बड़े हो गए, you need to understand, you need to study on your own, and these are for your entire course. You can go for like a chapter like light, and then ये देखिए आपके पास light सारे पूरी course के हमारे पास topicals हैं। I made them myself, not myself actually, my TAs make them, but I give them the question and stuff. अब जैसे देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की 79 पेजेस की वर्कशीट है जो आप लोग करेंगे। फिर हमारे पास वैसे वो मैग्नेटिज्म छोटे भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं। तो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग थ्रू आउट द कोर्स, ओके? हम लोग पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। इट्स अ 4 month कोर्स, यू ऑल नो दैट स्टफ, एंड registrations open है। These are the demo classes. We'll have one on Monday as well, and then we'll also have one on Tuesday. But guys, limited seats, you all know that stuff, वो तो हर जगह ही होता है। So that's pretty much